हेलो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स sides, and metry means measurement. Trigonometry means this is study in a triangle. Basically, it is study in right angle triangle. For example, this is a triangle AB and C. At angle C, 90 degree is formed. Okay? So what is trigonometry? Trigonometry tells about the relation between an angle. For example, this angle is x, or we can say this angle is theta angle, and if we find the relation between the sides and this angle, the angle along with side on which is made, this is called base of the triangle, and opposite to the side of this angle is called perpendicular. Then and other third side is called hypotenuse. Trigonometry tells about the relation between the angle and any other side of the triangle. In triangle, if we find the relation between perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, it is equal to sine theta. This is the relation. Means it is also called trigonometric ratio. P upon H. What is this? Is a ratio between any two quantities, and we study trigonometry. That's why this relation is called trigonometric ratio. And some another relation we study here is again is if you find or need know to find the relation between perpendicular base upon hypotenuse, this relation is called cos theta. And another relation is if you find perpendicular upon base relation, this is equal to tan theta. Theta is angle in this triangle. Suppose that this is theta. Okay, this is theta and this is P base, and this is base and this is hypotenuse. So trigonometry tells about the relation between the triangle and the angle and the side of the right angle triangle. Okay, how can we find this relation easily? Here some mnemonics I will use to know this relation. Let us go.
Suppose that we write here P B P upon H H एंड B। देखिए इसका क्या मतलब है। पंडित बद्री प्रसाद ओनली वी टेल दिस to know the relation between sin, cos and tan। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। This relation is called or gives sin theta. This relation is cos theta and this relation gives tan theta। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भी हमने क्या लिखा था, P अपॉन H इज साइन थीटा, ये रिलेशन हमने लिखा था। तो ये यहाँ से आप इजली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और क्या रिलेशन होते हैं, देखिए साइन थीटा इज the reciprocal of 1 upon cosec theta, and another relation is cos theta is equal to 1 upon sec theta, and another relation is tan theta is equal to 1 upon cot theta। ये भी रिलेशन इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं और क्या है आपके सिलेबस में, इसको देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, जो अभी मैंने बताया। ये रेशियो ही होता है किसका, एक ट्रायंगल का, जो राइट एंगल यहाँ बना रहा है, और एक कोई एंगल सपोज दैट ये थीटा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ लगा हुआ एडजेसेंट जो साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और इसमें ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो अभी मैंने रिलेशन बताया, देखिए साइन थीटा, यानी यहाँ पे आप एंगल ए बोल दिया गया है, वी इजीली यूज साइन थीटा फॉर योर कन्वीनियंस, इट इज़ इक्वल टू बेस, आप यहाँ बेस रख सकते हो, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ये इजी तरीका होता है लर्न करने का। बाकी आपको ये हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहते हैं, ये एंगल पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टेंजेंट कोसेंट, जो मैंने कॉस बताया, सेक बताया, कॉट बताया, ये इनका रिलेशन है आपके सिलेबस में, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिलेशन, तो हो गया आपका। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि ये देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दी गई है, इस एक कोण थीटा बोल सकते हैं 4/3। tan थीटा आपका 4/3 दिया गया है, और बाकी आपसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी आपसे साइन थीटा पूछा जा रहा है, कॉस थीटा पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये जो tan थीटा है, tan A है, tan A की जो वैल्यू है,
टेन ए बराबर आपका है 4/3। इसका मतलब टेन ए किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वहाँ से देखिए, P/B, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया 4 आपका और बेस हो गया आपका 3। यानी अगर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये आप थीटा माने हो आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूस आपका क्या होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ से निकालोगे हाइपोटेन्यूस तो ये आपका 5 आ जाएगा। इसको आप करके देख लेना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को आप ऐड करोगे 25, उसका अंडर रूट लोगे 5 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट स्क्वायर रूट आपका 5 आता है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। उसके बाद क्या होगा, आपसे साइन थीटा पूछा गया है, तो साइन थीटा यानी उसको अब यहाँ क्वेश्चन में ए दिया है थीटा एंगल, तो आप ए कंसिडर करोगे। ये होता है आपका P/H। आपने H5 निकाल लिया। P आपका यहाँ से कितना आ रहा था 4, तो 4/5 ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है निकालने का। उसके बाद देखिए और क्या है, इसके अलावा आपको कॉस निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए जो आपकी वैल्यू है इसको आप करोगे, ये होती है B/H। वहाँ से रिलेशन आप देख सकते हो जो अभी मैंने बताया था निमोनिक्स के तरीके से। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो बेस यहाँ पे कितना 3 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस अभी हमने कैलकुलेट किया तो 3/5 हो जाएगा। और जब ये सब आ गया तो देखो बाकी निमोनिक्स कैसे होते हैं, आपको सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा किसके बराबर, यानी सेक एंगल ए किसके बराबर होता है 1/cos के बराबर होता है। ये इजी है, cos ए के, और cos ए आपका कितना आया है, cos ए आया B/H यानी 3/4 आया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 3/B/H होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 5/cos, ये आपका जो सेक हो जाएगा इस तरीके से, सेक ए बराबर आपका हो जाएगा H/B। H कितना है आपका 5 और B कितना है आपका 3, ये रिलेशन हो जाएगा जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपकी ये सारी वैल्यू आप आइडेंटिफाई करोगे तो देखो यही मिलेगा। कॉट ए 3/4 जस्ट उसका रेसिप्रोकल 5/5, इस तरीके से ये बहुत सिंपल वे में होते हैं, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, इसमें आपको एग्जाम्पल ये है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए राइट एंगल यहाँ बन रहा है, ये आपका थीटा हो गया। मैं थीटा इज जनरल इसलिए मैंने यूज करने के लिए कहा था कि आप इनसे अपना काम देखो। ये 21 दिया है, 29। आपको इसका मतलब एंगल के ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे। बेस का स्क्वायर जो होता है, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है, ये इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इस रिलेशन से आप परपेंडिकुलर यहाँ फाइंड आउट कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20। ठीक है, जो कि दिया भी हुआ है। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर यहाँ आपको आइडेंटिफाई करके दिया गया है। फिर आपके पास रिलेशन आपको प्रूव करना है। प्रूव रिलेशन में देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रूव करना है, फर्स्ट आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती हैं, ये जस्ट 1 के बराबर आता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इसको प्रूव करना है, अभी इसको देखना है, डिटरमाइन करना है कितना आएगा। तो देखिए आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉस थीटा जो आपका होता है वो B/, किसके बराबर होता है, B/H के बराबर होता है।
आपका बेस कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 अपॉन एच कितना है आपका 29, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लो। और इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा देख लो, आपका क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आपका साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके लिए परपेंडिकुलर आपका कितना आया था 20/29 का स्क्वायर। जब आप इन दोनों वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्म में इसमें रखोगे, यानी कि आप करोगे 21/29 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा ये 20/29 का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, देखिए ये 1 के बराबर, देखो यहाँ आई है वैल्यू। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके देखोगे आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो ये एक डिफरेंट वैल्यू होती है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये आपको इजीली आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप कर रीचेक कर सकते हो, ठीक है। आपका देखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये दिया है कि 2 साइन ए, इसको थीटा आप मान के चलो, ज़्यादा इजी होता है कंसिडर करना, ठीक है। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 आपको वेरीफाई करना है। तो सिंपल वे में आपका क्या, देखो गिवन क्या दिया है इसमें, आपका गिवन दिया है राइट एंगल ट्रायंगल बी पर बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आपको ये 1 के प्रूफ करना है। तो आपको कोई इसमें तो 10a की वैल्यू दी गई है, वेरी गुड। 10a मीन्स आपको दिया गया है 10a का देने का 1 का मतलब ये क्या है, ये p/b की वैल्यू दी गई है, यानी p भी 1 है आपका। एंगल ए पूछा, देखो एंगल इस बार चेंज कर दिया है, थीटा ये है तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इधर, और बेस हो गया आपका ये, ठीक है। तो दोनों 1 है, तो ये हो जाएगा आपका रूट, ठीक है, √2। इसको पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट करके देख लोगे। और फिर इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, देखो इक्वल टू सॉल्व करने पर 1 आएगा। तो आपको पुट करना है 2 साइन ए कॉस ए, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखो 2 साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए होता है p/h, यानी कि 1/√2, और ये होता है 1/, ये होगा b/h, तो ये भी 1 है 1/√2। ये देखो 2 2 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 1 के बराबर हुआ है, मतलब इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखें, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप ट्राई करना है, एग्जाम्पल ये हो सकता है आपसे। उसके बाद देखो एक्सरसाइज जो है 8.1, ये सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस है। इसको रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये साइन थीटा, आपने साइन थीटा पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा और टेन थीटा पढ़ा, ये जो कहलाते हैं, यहाँ पे आपको साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा पढ़ा, और ये सेक थीटा पढ़ा, और उसके बाद कॉट थीटा पढ़ा। ये जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये जो कहलाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये रियल में हैं क्या, ये हैं, इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनको बोला जाता है, ठीक है। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। तो ये रेशियो के फॉर्म में, साइड के रेशियो के फॉर्म में बोले जाते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हम आपको करके बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको एक बार कोशिश करने के बाद फिर करोगे तो इजी हो जाएगा। देखिए
इसको पहले हम सॉल्व ही कर लें। देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम पहले सॉल्व कर। देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री से कुछ आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे का क्या है देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मीन्स जो आपने अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, ये प्रूव्ड आइडेंटिटी होती है। इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसको लर्न करना चाहिए। ठीक है, इसको समझना है। उसके बाद देखिए अब आपका ऊपर मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला था, तो उसको आप लिख सकते हो इस 1 माइनस साइन, यानी कि अगर देखो आप क्या करो इस 1 की तरफ इस साइन स्क्वायर थीटा को ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आप इसके बराबर यहाँ रख सकते हो। ऊपर में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में आपका कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस जो होता है या कॉस अपॉन साइन जो होता है, ये जो होता है कॉट के बराबर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आपको कॉट की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो कॉट की जो वैल्यू होती है ये बी अपॉन पी होती है और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें इसका मतलब यहाँ रखनी है। और कॉट की वैल्यू देखिए, अब देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन ये बना हुआ है कि यहाँ पे आपको कॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ रखना है कॉट थीटा का स्क्वायर रखना है आपको, यानी बी अपॉन पी का स्क्वायर रखना है। तो जस्ट आप इसका स्क्वायर कर दोगे, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर करोगे आप, तो आपको कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 64। इस तरीके से मैंने देखिए ये क्वेश्चन किया है और आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन इसमें आपको टफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सब इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो एक्सरसाइज एंड 8.1 जो है ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है, आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है।